हेलो दोस्तों, दुनिया में ढेर सारी अच्छी बातें हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कहाँ देखना है। क्या आप दिल को छू लेने वाली लाइफ स्टोरीज देखने के लिए तैयार हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का पिछले कुछ सालों से व्हील चेयर में बैठी अपनी माँ के साथ लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन्स में हिस्सा ले रहा है। इस वीडियो में हॉस्पिटल का स्टाफ एक इंपॉर्टेंट सर्जरी से पहले उत्साह के वातावरण बना रहा है, ठीक अपने छोटे पेशेंट जेमसन के साथ, ताकि इसे कोई डर न लगे। हमने सुना था कि कभी कभी डॉक्टर्स ऑपरेटिंग रूम में म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो ऐसा भी करते हैं। चेक दिस आउट, ये स्कूल बस हर रोज बच्चों को एक ही रूट से ले जाती है और ये दादी हर रोज उन्हें देखकर बाहर आ जाती है। साउंड्स बोरिंग हो सकता है, लेकिन एक बात काफी अच्छी है, बच्चों को दादी को ग्रीट करने का तरीका। आप यहाँ एक स्कूल के सफाई कर्मचारी मिस्टर जो को देख रहे हो, जिन्हें सभी स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स ने देखा कि ये बूढ़ा आदमी हर रोज पैदल स्कूल तक जाता है, वो किसी तरह उनकी मदद करना चाहता है, और फिर स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा किया जो आप सभी का दिल छू लेगा दोस्तों। Hey, Mr. Joe. Hey, who's that? It's Jay. Oh, hey, how you doing, buddy? I'm doing good. How about you? I'm doing well. What is all this? What is all what? The little papers, little Yeah. notes? You're really much appreciated in this school. Everyone loves you, loves the things that you I got live for over us. kids too. Yeah. Kids are my favorite. That's why I'm here every day. Every day. I want to clean schools with these kids. I know you love these kids. I know you want to keep the always fresh and clean. I really appreciate that, keeping everything intact. Out of all these 4 years, you're definitely my favorite part. So I just wanted to Well, thank you very much. Yeah. But what is all this? What is? I don't understand. Let him open it. Let him open it. See if he can guess what it is. There's nothing in there. You feel anything? No. Keep looking, Mr. Still Joe. don't feel anything. What are you guys doing? You don't feel anything, Mr. Joe? I don't feel anything. Are you sure? Yeah. You're positive. Yes, I am. Check again. Uh-oh. There's something in here. What does it feel like? Feels like a key, a fob, or something like that. Yeah. Are you ready to know what it is? I sure am. All right, Mr. Joe, we appreciate all your hard work. Us students came together and we got you a little something. We know you've been walking to school for the past 4 years. Every day. We're graduating this year and we just wanted to show you our appreciation so you never have to walk again, Mr. Thank Joe. you very much. Go ahead and look. Oh my God, what is that? That's your car, It's a Mr. Joe. Come on, Mr. Joe. Joe. Check out your new Mr. Joe. You gotta be kidding. This I've is never had yours. it. I've never had it. Go ahead, go in there. Check it out. Yours. All yours, Mr. Joe. You never have to walk It's your again. I can't believe this, guys. The school did this? The kids did this? Who did this? It was us. We came together. We put together some money. All the kids did because all the kids love you. So Can't wait for my wife to see this. We just कल्पना कीजिए कि आप एक खूबसूरत झील में बोट की सवारी कर रहे हो और अचानक आपको एक तैरता हुआ हिरन नजर आए। ऐसे टाइम आप क्या करोगे? Go, 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 go get jump, go! Grab it! Get its leg! I don't know what. इन लोगों ने जरा भी देर नहीं की और इस जानवर को बचाने के लिए पानी में कूद गए। कुछ यूजर्स ने कमेंट्स में कहा है कि हिरन इंसानों से बेहतर तैर सकते हैं, इसीलिए इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये हिरन काफी छोटा था, इसीलिए हमें लगता है कि ये कदम बिल्कुल सही था। कहते हैं कि बच्चे काफी स्वार्थी होते हैं। अक्सर ये बात सच भी होती है। हो सकता है कि इसमें माता पिता की गलती हो, क्योंकि हमने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो दोस्तों के लिए अपनी खुशी भी भूल जाते हैं। इस स्कूल के बच्चों ने कई महीनों तक पैसे इकट्ठे किए अपने उस दोस्त की मदद के लिए जो ल्यूकीमिया से पीड़ित था।
ये दादी काफी डरी हुई थी। काफी देर से सड़क पार करने के लिए गाड़ियों के रुकने का इंतजार कर रही थी। किसी भी ड्राइवर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एक साइकिलिस्ट ने रुककर उस ग्रैनी को सुरक्षित रूप से सड़क पार करा दी। ये दादाजी 97 साल के हैं और इन्हें दुनिया का सबसे वयस्क प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर कहा जाता है। बट दैट्स नॉट द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। इस टेनिस कोर्ट की दूसरी तरफ ऑरेंज टी शर्ट में वो इंसान है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हैं। दादाजी का सपना था कि एक दिन वो नडाल के खिलाफ खेलें। जब नडाल को इस बारे में पता चला तो उसने खुशी से उन्हें अपनी एकेडमी पर इन्वाइट किया। बदकिस्मती से हमारे आसपास कई बेघर कुत्ते होते हैं, लेकिन हर कोई उनकी मदद के लिए अपना टाइम खर्चने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये इंसान वैसा नहीं है। क्लब्स और नेशनल टीम्स के सबसे लॉयल फैंस हमेशा किसी फुटबॉल मैच के दौरान सबसे आगे की सीट खरीदते हैं। व्हीलचेयर में बैठा हुआ ये इंसान भी उन्हीं में से एक है और हमें यकीन है कि वो ये गोल जिंदगी भर याद रखेगा। भले ही इस आदमी के सर पर छत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसके पास एक बहुत बड़ा दिल है जो सड़कों के कुत्तों को भूखा नहीं सोने देता। अगर कोई आपको छुट्टी के दिन भी काम पर आने के लिए बोले तो शायद आप नर्वस भी हो जाओगे, लेकिन अगली कहानी आपको सरप्राइज कर देगी। मिलिए ब्रूक से, जो एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स है। साथ ही उसे खूबसूरत हेयर स्टाइल्स बनाना भी पसंद है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अपने पेशेंट्स और पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए कुछ किया जाए। तब से वो वीकेंड्स पर भी हॉस्पिटल आती है और पेशेंट्स के बालों का ख्याल रखती है, और आप पेशेंट्स की खुशी देख ही सकते हो। क्या ये किसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का सीन है? नहीं, ये बस एक दयालु लड़का है जो इस बूढ़ी महिला को पानी से बचा रहा है। काश दुनिया में ऐसे और लोग होते दोस्तों। इस बच्चे का नाम टिमोफी है और इसे बचपन से एक सीरियस बीमारी है, लेकिन फिर भी इस बच्चे का सपना दूसरे बच्चों की तरह ही है। वो हमेशा अपने माता पिता से कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। उसके माता पिता ने कुछ करने का फैसला किया और लोकल पुलिस ऑफिस से संपर्क किया। टिमोफी का अगला बर्थडे मनाने के लिए असली पुलिस वालों ने उसके लिए कुछ खास गिफ्ट लाए। अगर आप भी ये देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। ऐसी एक और कहानी, सिर्फ इस बार ये रशिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में। ये लोग मिशिगन पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स हैं जो उनके छोटे दोस्त जेके के बर्थडे मनाने आए हैं। और हाँ, ये खाली हाथ नहीं आए हैं, उन्होंने इस बच्चे के लिए एक शानदार रिमोट कंट्रोल पेट्रोल कार लाए हैं। इस कार पर बच्चे का नाम भी लिखा है। जाहिर है इसे देखकर जेके की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस बूढ़े दादाजी को लगा कि उन्हें किसी पार्क में घूमने के लिए ले जाया जा रहा है। Can I open my eyes? Yep. Oh my goodness, man. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर उनका इंतजार कर रहा है। I can't believe it, Amanda. This is mine. This is all yours. Oh my goodness. उनके इमोशन सच में प्राइसलेस हैं। उनके पड़ोसियों ने इस गिफ्ट को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए और उन्हें खुशी है कि उनकी मेहनत रंग लाई। All right. Oh, this is so cool.
प्लेन में सवार एक बूढ़ी महिला ने देखा कि आगे की सीट पर बैठा लड़का अपनी सीट में कंफर्टेबल नहीं था। एक्चुअली लड़का काफी लंबा था और उसके पांव छोटी जगह पर फिट नहीं हो रहे थे। तो अभी उसे एक लेडी ने इमरजेंसी एग्जिट के बगल वाली अपनी कंफर्टेबल सीट में उसके साथ एक्सचेंज कर ली। आप देख सकते हो लड़के की टांगे वाकई लंबी है। एक छोटा बच्चा अपने स्कूल बस में बैठा बोर हो रहा था। करने के लिए कुछ न होने के कारण उसने एक सिक्का निकल लिया। डिस्क्लेमर, प्लीज डोंट डू दैट। अच्छा हुआ कि एक टीचर और पार्ट टाइम बस ड्राइवर मिसेस मैक्सवेल पास ही थी। इस महिला ने हिम्मत से काम लिया और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लिया। अ रियल हीरो। यकीन मानिए उनका रिएक्शन देखकर आपका दिन और भी बेहतर हो जाएगा। You look so pretty. Thank you so much. Yes, I just love that green on you. I thought you needed to know. It goes so well with your hair. I love the color combination. You're so summery. You look so pretty. I just wanted to let you know you're so gorgeous. Thank you. No, you're so beautiful. किसी भी स्कूल में कोई ऐसा होता है जो हमेशा अकेला रहता है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन हो सकता है कि उसे पता ही नहीं हो कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। ऐसी एक लड़की की तरफ इस टिकटॉक को बनाने वाली लड़की ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। ये इंसान सिर्फ इसलिए पानी के बीच खड़ा है ताकि सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो जाए। ये लोग पुराने दोस्त लग रहे हैं, राइट? लेकिन असल में कुछ घंटों पहले ही मिले हैं। जॉर्ज एक बेघर इंसान है और जस्टिन नाम का लड़का उसे पिज्जा खिलाने के लिए ले जा रहा है। क्या आप किसी को इतना देखकर खुश हुए हैं? So he said the only time he's ever really had something like this was in jail, but it wasn't like this. It was the idea of it. It was the idea. Look at that. एक फिटनेस ट्रेनर ने अपने वर्कआउट के बाद कुछ फ्राइड चिकन ऑर्डर किया। जब डिलीवरी बॉय गर्मा गर्म खाना लेकर आया तब इस ट्रेनर ने उसे एक फ्री वर्कआउट सेशन ऑफर किया। साथ ही अपने स्पोर्ट्स कलेक्शन से उसे एक टी शर्ट भी गिफ्ट की। रेस्पेक्ट फॉर यू ब्रो। कहते हैं कि न्यूयॉर्क सबसे बिजिएस्ट सिटीज में से एक है जहां लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। हो सकता है ये सच हो, लेकिन अपने अर्जेंट काम के बावजूद कुछ सबवे पैसेंजर्स ने व्हील चेयर सवार इस व्यक्ति के गिरे हुए पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद की। इस क्लाइंट ने डिलीवरी बॉय से कहा कि उसके पास टिप देने के लिए सिर्फ बड़े नोट्स हैं। डिलीवरी बॉय को उम्मीद थी कि वो $10 के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन जब उसे $500 का टिप मिला तब उसका रिएक्शन बिल्कुल प्राइसलेस था। If we tip in cash? No, that's fine. I got $500. Do you think that's enough? Are you serious? Yeah. Like, Does that work? Is that enough? yeah, it's more than enough. Oh God, like I don't even know what to say to you guys. Like, just thank you. Like, oh man. Like, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इससे भी बड़े टिप्स दिए गए हैं। इस महिला को थैंक्स गिविंग के दिन $1000 दिए गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ लोग इस महत्वपूर्ण दिन पर किसी की मदद करना चाहते थे। This isn't from me. This is from 1,000 people that have given, so you could have $1,000 tip today. पता चला कि ये पैसे पूरे शहर ने दिए थे। यहाँ के 1000 लोगों ने $1 डोनेट किया और इसे किसी रैंडम डिलीवरी पर्सन को देने का फैसला किया। जाहिर है ऐसे मौके पर अपने इमोशंस पर काबू रखना नामुमकिन होता है। 1,000. There you go. So much. Of course. I'm going Black Friday for my grandbabies. Good. इस लड़की को टैंक से डर नहीं लगता है उसे लोगों की सेहत की ज्यादा चिंता है। इसलिए वो सड़क के किनारे खड़ी होकर मिलिट्री वालों को ऑरेंजेस बांट रही है। मिलिट्री के लिए विटामिन सी का एक्सीलेंट सोर्स।
उस एथलीट की जगह खड़े होकर देखिए जो महीनों तक किसी कंपटीशन की तैयारी करता है और डायरेक्शन के टाइम पर उसका शरीर साथ छोड़ देता है। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लंदन मैराथन के दौरान एक रनर के साथ यही हुआ, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने रिजल्ट और रिकॉर्ड की परवाह किए बिना उसकी मदद की। I'd like to pay for your groceries, is that okay? I'd like to pay for your groceries, is that okay? I just wanted to do a good deed for you. Why not? Your groceries are on me today, okay? Yeah. इस लड़के को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बस दुनिया में थोड़ी अच्छाई लाना चाहता था। I also have something else for you. क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में पार्सल्स में देरी क्यों होती है? क्योंकि हर कोई तरह लकी नहीं होता। अरे बर्फीले तूफान में भी मदद करने वाले राहगीर मिल जाएंगे।